دنیا میں صرف دو ہی طرح کی فلم انڈسٹریز ہیں، ایک ہالی ووڈ اور دوسری بالی ووڈ۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ پارٹیشن سے پہلے ایک ساتھ شروع ہونے والا یہ سنیما آج ایک دوسرے سے اتنا دور کیوں ہے؟ کیوں ایک طرف $200 ملین کی فلمیں بنتی ہیں اور دوسری طرف سنیما ہالز ویران پڑے ہیں؟ کیا پاکستان کی فلم انڈسٹری شروعات سے ہی اتنی کمزور تھی کہ وہ کبھی سر اٹھا ہی نہ سکی، یا پھر اس ناکامی کے پیچھے کوئی ایسی ہڈن کہانی ہے جس سے آپ اب تک انجان ہیں؟ دوسری طرف کیسے انڈیا آج ہالی ووڈ تک کو اپنی سنیما سے چیلنج کر رہا ہے؟ کیا ہسٹری رہی ہے ان سب کی؟ اور اس کے ساتھ اور بھی بہت سے انٹرسٹنگ باتیں ہم جانیں گے آج کے اس ویڈیو میں۔ سال 1913 جب بالی ووڈ کی پہلی سائلنٹ فلم راجہ ہریش چندر ریلیز ہوئی تھی۔ جی ہاں، یہ انڈیا کے پارٹیشن سے ٹھیک 34 سال پہلے کا وقت تھا جب اس انڈسٹری کی شروعات ہوئی، لیکن بالی ووڈ کی پہلی بولتی فلم سال 1931 میں ریلیز ہوئی تھی جس کا نام تھا عالم آرا۔ ہاں، اب تک پارٹیشن نہیں ہوئی تھی اور بالی ووڈ یونائٹڈ انڈیا کی واحد فلم انڈسٹری تھی۔ اس کے کچھ ہی سال بعد 1947 میں پاکستان اور انڈیا دو الگ ملک بن گئے۔ ڈیوائیڈ ہونے کے بعد انڈیا نے ممبئی میں بالی ووڈ کو سنبھالا، وہی دوسری طرف پاکستان نے اپنی ایک الگ فلم انڈسٹری بنائی جسے ہم آج لالی ووڈ کے نام سے جانتے ہیں۔ لالی ووڈ لفظ ہالی ووڈ سے انسپائرڈ ہے اور اس کا نام لالی ووڈ اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس انڈسٹری کا سینٹر لاہور میں تھا۔ لاہور کا ایل لے کر اسے لالی ووڈ کہا گیا۔ ٹھیک اسی طرح بالی ووڈ لفظ بھی ہالی ووڈ سے ہی انسپائرڈ ہے۔ اس کا نام بمبے سے نکلا ہے جو ممبئی کا پرانا نام تھا۔ بمبے کے بی کو ہالی ووڈ کے ساتھ ملا کر اسے بالی ووڈ کہا گیا، اور آخر کار وہ دن آ ہی گیا جب پاکستان کو اپنی پہلی فلم ملی۔ 7 اگست 1948 کو، یعنی پاکستان کی آزادی کے ٹھیک ایک سال بعد، عید الفطر کے خاص موقع پر لاہور کے پربت سنیما میں پاکستان کی پہلی فلم ریلیز ہوئی۔ اس تاریخی فلم کا نام تھا تیری یاد۔ حالانکہ یہ فلم اس وقت اتنی کامیاب نہیں رہی، لیکن اس نے پاکستان کی اپنی الگ انڈسٹری یعنی لالی ووڈ کی بنیاد رکھ دی تھی۔ یہ دور پاکستان کے لیے کسی گولڈن ایرا سے کم نہیں تھا۔ 1950s سے لے کر 1970s کے دوران پاکستان کا سنیما یعنی لالی ووڈ بہت زیادہ سٹرونگ ہوا کرتا تھا۔ اس وقت ارمان اور آئینہ جیسی بڑی فلمیں ریلیز ہوئی جنہوں نے باکس آفس پر کامیابی کے نئے ریکارڈز بنائے۔ اتنا ہی نہیں، اس دور میں وحید مراد اور زیبا کی جوڑی اتنی پاپولر تھی کہ ان کا مقابلہ کسی بھی بڑے انڈین سٹار سے کیا جا سکتا تھا۔ لوگ ان کے دیوانے تھے اور ان کی ہر فلم کا انتظار پورے ملک میں کیا جاتا تھا۔ لیکن 1960s سے لے کر 1980s تک کا یہ وہ دور تھا جس نے پاکستان اور انڈیا کے فلم انڈسٹریز کا پورا گیم ہی بدل کر رکھ دیا۔ یہ صرف وقت نہیں گزرا بلکہ یہی وہ ایرا تھا جس نے دونوں ملکوں کے سنیما پر سب سے بڑا اور گہرا امپیکٹ ڈالا۔ جہاں ایک طرف انڈیا نے اپنے انفراسٹرکچر اور ٹیکنالوجی پر کام کرنا شروع کیا، وہی دوسری طرف پاکستان میں کچھ ایسے حالات بنے جنہوں نے چلتی ہوئی انڈسٹری کی رفتار روک دی۔ ان 3 ڈیکیڈز میں ہونے والی تبدیلیوں نے ہی یہ طے کیا کہ آج بالی ووڈ کہاں ہے اور لالی ووڈ کہاں کھڑا ہے۔ اسی دور میں پاکستان کا لالی ووڈ بری طرح زمین پر آ گرا۔ 1980s میں پاکستان میں گنداسا کلچر اور مولا جٹ جیسی فلموں کا دور شروع ہوا جس نے سنیما کا مزاج ہی بدل کر رکھ دیا۔ اب فلمیں صرف ایک اسپیسیفک کلاس کے لیے رہ گئی تھی۔ کوالٹی اتنی گر گئی تھی کہ فیملی آڈینس نے سنیما جانا چھوڑ دیا اور گھروں میں بیٹھ گئی، اور تب اسی خالی جگہ کا فائدہ بالی ووڈ نے اٹھایا اور VCR کے ذریعے انڈین فلمز نے ہر پاکستانی گھر پر قبضہ کر لیا۔ جی ہاں، اس وقت پورے پاکستان کے گھر گھر میں انڈین فلمز کا شور تھا اور انڈیا کا بالی ووڈ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا تھا۔ جب پاکستان میں لوگوں کا فلمز میں انٹرسٹ کم ہو رہا تھا، ٹھیک اسی وقت انڈیا میں مسالہ سنیما کا دور آیا۔ امیتابھ بچن کے اینگری ینگ مین نے پوری دنیا میں دھوم مچا دی۔ انڈیا نے صرف ہیرو ہی نہیں بنائے بلکہ بڑے بڑے اسٹوڈیو سسٹمز کھڑے کیے اور نئی ٹیکنالوجی میں انویسٹ کیا جس نے بالی ووڈ کو ایک گلوبل برانڈ بنا دیا۔ اب ذرا سمپل ورڈز میں سمجھتے ہیں کہ آخر بالی ووڈ دنیا کی ٹاپ فلم انڈسٹریز میں کیسے شامل ہو۔ اس کی سب سے پہلی اور سب سے امپورٹنٹ وجہ تھی
बॉलीवुड का मसाला एरा। ये वो दौर था जिसने सिनेमा का पूरा फार्मूला ही बदल कर रख दिया। उन्होंने एक्शन, रोमांस, कॉमेडी, ड्रामा और गाने डांस का एक ऐसा जबरदस्त मिक्सचर तैयार किया जो हर उम्र के इंसान को पसंद आता था। इस यूनिक स्टाइल ने न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और बॉलीवुड को एक अलग पहचान दी। दूसरी बड़ी वजह है बॉलीवुड के गाने और डांस। दुनिया भर में बॉलीवुड की सबसे बड़ी पहचान उनकी म्यूजिक से ही होती है। इन फिल्मों ने गाने और डांस को सिर्फ इंटरटेनमेंट का हिस्सा नहीं रखा बल्कि उसे स्टोरी टेलिंग का एक जरिया बना दिया। आज ये गाने सिर्फ इंडिया तक महदूद नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में सुने और पसंद किए जाते हैं। चाहे कोई शादी हो या कोई इंटरनेशनल इवेंट, बॉलीवुड म्यूजिक का अपना एक अलग ही क्रेज है। इसी म्यूजिक ने बॉलीवुड को ग्लोबल लेवल पर एक यूनिक ब्रांड बना दिया है जो किसी और इंडस्ट्री के पास नहीं है। तीसरी बड़ी वजह है उर्दू और हिंदी का खूबसूरत मिक्सचर। शुरुआत से ही बॉलीवुड में बड़े बड़े स्टार्स और राइटर्स जैसे दिलीप कुमार और गुलजार साहब ने ऐसी स्क्रिप्ट्स और शायरी लिखी जो हिंदी और उर्दू का एक परफेक्ट ब्लेंड थी। इसी वजह से न सिर्फ इंडिया में बल्कि पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने वाले लोगों ने भी इन मूवीज को अपना लिया। इस हिंदुस्तानी जुबान ने बॉलीवुड को सरहदों के पार हर दिल तक पहुँचा दिया। और चौथी सबसे अहम वजह है ग्लोबल रीच। 1990s में जब इंडिया में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुई तो बॉलीवुड में इन्वेस्टमेंट का एक नया दौर शुरू हुआ। फिल्मों की प्रोडक्शन क्वालिटी बेहतर हुई, बड़े बजट्स आए और नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ा। इससे न सिर्फ बाहर रहने वाले इंडियंस बल्कि ग्लोबल ऑडियंस तक एक्सेस बहुत आसान हो गई। मूवीज को इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट किया गया और इसी तरह बॉलीवुड वक्त के साथ साथ तरक्की करता गया। तो अब जरा ये भी जान लेते हैं कि आखिर इतनी मजबूत फिल्म इंडस्ट्री यानी लॉलीवुड फ्लॉप कैसे हो गई। इसकी सबसे पहली और बड़ी वजह थी सख्त सेंसरशिप। साल 1979 में जियाउल हक के दौर में नए लाज लागू किए गए जिनसे फिल्म मेकर्स की क्रिएटिव आज़ादी लगभग खत्म हो गई थी। इन लाज में हीरोइनी के लिए दुपट्टा पहनना लाजमी कर दिया गया, यहाँ तक कि लाल रंग के कपड़ों पर भी सख्ती की गई। इनाम ने कहा है कि लाल रंग अब मना है। कई ऐसी फिल्में जो थोड़ी सी भी अलग थी उन्हें अन इस्लामिक कहकर बैन कर दिया गया। इस सेंसरशिप ने डायरेक्टर्स का हौसला तोड़ दिया और उन्हें मजबूर किया कि वो पुरानी और घिसी पिटी कहानियों पर ही काम करें। दूसरी बड़ी वजह थी VCR और पायरेसी का आगाज। 1970s के आखिर में जब VCR घरों में आने लगे तो लोगों का सिनेमा जाने का रिवाज बदलने लगा। लोगों ने सिनेमा हॉल्स जाने के बजाय घर बैठकर बॉलीवुड फिल्मों की पायरेटेड कैसेट्स देखना शुरू कर दी। ये इंडियन फिल्में लॉलीवुड के पुराने फिल्मों के मुकाबले ज्यादा कलरफुल और बेहतर क्वालिटी की होती थी। इस पायरेसी ने पाकिस्तान के सिनेमा बिजनेस की कमर तोड़ दी और थिएटर्स खाली रहने लगे। तीसरी बड़ी वजह बनी क्रिएटिव एग्जॉस्शन और गंदासा कल्चर। एक वक्त था जब उर्दू सिनेमा अपनी शायरी और रोमांस के लिए माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी जगह वायलेंट पंजाबी फिल्मों ने ले ली। मौला जट की कामयाबी के बाद हर डायरेक्टर बस गंदासा और खून खराबा ही दिखाने लगा। इस एक्सेसिव वायलेंस और एक ही तरह की कहानियों की वजह से फैमिली ऑडियंस ने मूवीज देखना बिल्कुल बंद कर दिया और इंडस्ट्री सिर्फ एक स्पेसिफिक क्लास तक महदूद होकर रह गई। चौथी बड़ी वजह बनी भारी टैक्सेस और इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही। गवर्नमेंट ने फिल्मों पर इतने ज्यादा इंटरटेनमेंट टैक्सेस लगा दिए कि प्रोड्यूसर्स के लिए मुनाफा कमाना मुश्किल हो गया। जब फिल्म से पैसा नहीं आया तो बड़े बड़े सिनेमा हॉल्स वीरान होने लगे। नतीजे में पूरे मुल्क में सैकड़ों पुराने तारीखी सिनेमा हॉल्स बंद कर दिए गए और उनकी जगह शॉपिंग प्लाजास ने ले ली और इस तबाही ने फिल्म देखने का कल्चर ही खत्म कर दिया। पांचवी और आखिरी सबसे बड़ी वजह थी टैलेंट का नुकसान। 1971 में जब ईस्ट पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बना तो लॉलीवुड ने अपने एक बहुत बड़े मार्केट को खो दिया, लेकिन सबसे इंटेलिजेंट टेक्नीशियंस और बेहतरीन एक्टर्स शबनम और रोबिन घोष जैसे बड़े स्टार्स जो लॉलीवुड की जान थे इसके बाद भी पाकिस्तान में काम कर रहे थे। लेकिन इस मामले ने पाकिस्तान के फिल्म इंडस्ट्री को अंदर से कमजोर कर दिया था। 19 से लेकर आज तक इंडिया ने अपनी फिल्म इंडस्ट्री में एक से लेकर एक बेहतरीन फिल्में लाई हैं, चाहे वो 1975 की शोले हो या फिर उसी साल की दीवार या फिर 19s की हम आपके हैं कौन हो या दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इन फिल्मों ने सिर्फ रिकॉर्ड्स ही नहीं तोड़े बल्कि लोगों के दिलों पर एक गहरी छाप छोड़ दी है। वक्त के साथ बॉलीवुड ने खुद को चेंज किया और मॉडर्न सिनेमा में पीके, 3 इडियट्स, जवान और पठान जैसी मूवीज के जरिए नए रिकॉर्ड्स कायम किए। आज ये फिल्में सिर्फ इंडिया तक महदूद नहीं है बल्कि 100 से भी ज्यादा कंट्रीज में रिलीज होती है।
2015 के बाद बॉलीवुड बिल्कुल एक अलग ही लेवल पर चला गया है। आप अंदाजा लगाइए कि जितने बजट में पाकिस्तान की पूरी फिल्म बनती है उतने में आज बॉलीवुड का सिर्फ एक आइटम सॉन्ग शूट होता है या एक ट्रेलर लॉन्च का इवेंट होता है। ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं बल्कि ये दिखाता है कि बॉलीवुड एक ग्लोबल पावर बन चुका है। लेकिन सिर्फ पैसा और बड़े बजट ही सब कुछ नहीं होते। इन फिल्मों को सरहदों के पार असली पहचान दिलाई है बॉलीवुड के बड़े स्टार्स ने, खास तौर पर खान ट्रियो ने। शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान, ये वो 3 नाम हैं जिन्होंने बॉलीवुड को एक इंटरनेशनल ब्रांड बना दिया। इनकी मूवीज का क्रेज न सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान में है बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट से लेकर अमेरिका और यूरोप तक। इनकी वजह से ही बॉलीवुड का नाम आज हर किसी के जुबान पर है। इन तीनों की ही स्टार पावर ने बॉलीवुड को आज उस मुकाम तक पहुंचा दिया जहां आज दुनिया की कोई भी बड़ी इंडस्ट्री इन्हें इग्नोर नहीं कर सकती। इन तीनों की स्टार पावर के साथ साथ एक और चीज भी है जो बॉलीवुड की रग रग में बसी है और वो है यहाँ का म्यूजिक फैक्टर। सच तो ये है कि बॉलीवुड फिल्में सिर्फ कहानियाँ नहीं बल्कि म्यूजिकल्स होती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि फिल्म की कहानी शायद ही थोड़ी कमजोर हो लेकिन उसके गाने इतने हिट हो जाते हैं कि वो पूरी फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनवा देते हैं। ये म्यूजिक ही है जो बॉलीवुड को दुनिया की बाकी इंडस्ट्रीज से अलग और बिल्कुल यूनिक बनाता है। लेकिन आज का बॉलीवुड सिर्फ गानों तक महदूद नहीं रहा। अब यहाँ प्रोफेशनलिज्म और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का दौर है। स्क्रिप्ट से लेकर वीएफएक्स तक बॉलीवुड ने हर चीज में खुद को चेंज किया है। देखा जाए तो ड्रामाज में वीएफएक्स अक्सर एक आर्टिफिशियल डिस्टरबेंस क्रिएट करता है क्योंकि ड्रामाज लॉन्ग टर्म होते हैं और लोग उनकी नेचुरल फील से कनेक्ट करते हैं। लेकिन फिल्मों के साथ ये बिल्कुल उल्टा है। फिल्म एक शॉर्ट टर्म इंटरटेनमेंट होती है जहाँ वीएफएक्स कहानी को और भी ज्यादा इंगेजिंग और ग्रांड बना देता है। इंडिया ने तो अब हॉलीवुड के स्टैंडर्ड्स को टच करना शुरू किया है। RRR और कल्कि जैसे फिल्मों ने ये साबित कर दिया है कि अब बॉलीवुड सिर्फ लोकल नहीं बल्कि एक ग्लोबल टेक्निकल पावर हाउस बन चुका है। उन्होंने अपने स्टूडियो सिस्टम्स को इतना बेहतर कर लिया है कि आज उनकी प्रोडक्शन क्वालिटी पूरी दुनिया में मानी जाती है। लेकिन ये कंप्लीट पिक्चर नहीं है। बॉलीवुड की पॉपुलैरिटी और ग्लोबल कामयाबी के पीछे एक साइलेंट सपोर्ट भी है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। सच तो ये है कि बॉलीवुड आज जितना भी बड़ा ब्रांड बन चुका हो वो पाकिस्तान के टैलेंट के बिना आज भी अधूरा है। अगर हम म्यूजिक की बात करें तो आतिफ असलम, राहत फातेह अली खान और शफकत अमानत जैसे नामों ने भी बॉलीवुड को वो रूह और वो साउल दी है जो शायद ही कोई दे सकता है। फर्स्ट टाइम उन्होंने कहा वाह क्या गाना है, सुपर, वापस से बजाओ। इन सिंगर्स के बिना बॉलीवुड की कई ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर्स शायद सिर्फ मूवीज ही रहती। उन्हें वो जज्बात और वो गहराई कभी न मिलती जो आज उनकी असली पहचान है। इनकी आवाज़ों ने सरहदों के दोनों तरफ लोगों को जोड़ा है और ये साबित किया है कि बॉलीवुड की उड़ान में पाकिस्तान के इस टैलेंट का एक बहुत बड़ा और अहम किरदार है। इन सब बातों से एक ही बात साफ होती है कि आर्ट बॉर्डर्स को नहीं मानती। लेकिन जहां आर्ट एक दूसरे को जोड़ती है वहीं बिजनेस और पैसा दोनों इंडस्ट्रीज के दरमियान एक बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा कर देता है। अगर हम हिट और फ्लॉप के इस इकोनॉमिक गैप को देखें तो आंखें खुल जाती है। आज बॉलीवुड का एनुअल रेवेन्यू $2 बिलियन से भी ज्यादा है जो दिखाता है कि ये एक कितनी बड़ी ग्लोबल इंडस्ट्री बन चुकी है। इसके मुकाबले में पाकिस्तान की पूरी साल की सबसे टॉप फिल्म्स भी मुश्किल से 10 से 15 मिलियन डॉलर्स तक ही जा पाती हैं। ये सिर्फ नंबर्स का फर्क नहीं बल्कि ये दिखाता है कि बॉलीवुड के पास रिसोर्सेज और सिनेमा हॉल्स का कितना बड़ा नेटवर्क है जो लॉलीवुड के पास फिलहाल मौजूद नहीं। इंडिया ने अपने स्टूडियो सिस्टम्स बनाए, नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया और मूवीज को ग्लोबल प्रोडक्ट की तरह बेचा। उन्होंने समझा कि फिल्म सिर्फ 1-2 घंटे की कहानी नहीं बल्कि एक पूरी इंडस्ट्री है जो एक कंट्री की इकोनॉमी को मजबूत कर सकती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने सिर्फ इंटरटेनमेंट के हद तक काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान न दिया और वक्त के साथ साथ खुद को न बदला। यही वो मेन रीजन है कि आज दोनों इंडस्ट्रीज के दरमियान इतना बड़ा डिस्टेंस क्रिएट हो चुका है। आखिर में हेट अपनी जगह, लेकिन रियलिटी यही है कि बॉलीवुड आज दुनिया की सबसे बड़ी कल्चरल इन्फ्लुएंस बन चुका है। उनकी हिस्ट्री वाकई एक काबिल तारीफ कहानी है और आज भी इंडिया किसी से कम नहीं। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, जहाँ बॉलीवुड इतना बड़ा ब्रांड बना वही पिछले कुछ सालों में एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। बॉलीवुड का वो पुराना मसाला अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। कई ऐसी बड़ी फिल्में आई हैं जो अपना बजट तक रिकवर नहीं कर सकी, जिससे लगता है कि बॉलीवुड अब एक बहुत बड़े क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है। क्या बॉलीवुड वाकई डूब रहा है? इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बन सकती है। अगर चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। मिलते हैं अगली डॉक्यूमेंट्री में, तब तक के लिए गुड बाय।